नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आई हैव समवन विद मी मेरे साथ जो अभी एक हस्ती बैठी हैं, ये कुछ समय पहले बड़े न्यूज़ में थे। ये न्यूज़ में इसलिए थे, ये सोशल मीडिया इंचार्ज थे किसके? असम बीजेपी के। अब जैसे ही मैंने नाम बोलूँगा आपको सडनली याद आएगा, हाँ, सबको याद आया। रोहन विकास जी, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू मी। Thank you, David. सी मैं इनसे बात ये करना चाह रहा था पहले तो व्हाट इज़ गोना हैपन इन असम एंड ऑफ कोर्स असम, बंगाल एंड पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसके अंदर पॉलिटिक्स ही नहीं, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एंड बहुत Yeah, जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है। सो right. ओवरऑल यार प्लीज़ टेल मी हाउ डू यू सी दीज़ इलेक्शंस? पहले तो असम का मेजर विक्ट्री फॉर द बीजेपी एंड ऑफ कोर्स यू नो बंगाल अनदर मेजर विक्ट्री फॉर द बीजेपी। तो हाउ डू यू सी दिस? कैसे देखते हो आप इसको? See, Assam is a very strategical state. ये geopolitically हो या फिर इंडिया के demographically and there are all many other things में जो असम और नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत important state है and ये सारा like we had बीजेपी गवर्नमेंट इन 2016 और वहां से उस वक्त से असम का एक चेंजेस मतलब देखने को मिल रहा है वो डेवलपमेंट इश्यूज हुए और द अदर एस्पेक्ट्स लाइक द डेमोग्राफिक चेंज एंड ऑल दैट बट द मेजर प्रॉब्लम वाज हैपनिंग इन West Bengal because West Bengal government was not someone who would they have the infiltrations and all those. So now that Assam and Bengal दोनों का एक सेम गवर्नमेंट हो गया with the central government, I think there will be a drastic change in terms of policies, in terms of the demographic changes का जो उनको जो actions लेना पड़ता है वो सब में एक changes आएगा because in Assam even like before 2014 or mostly before 2016 we would have seen the what's the border areas used to be बिकॉज वहां पे फेंसिंग नहीं होना वो लैंड्स का इश्यूज होना ये बहुत सारी चीजें असम में हुआ करता था पर इन द लास्ट 10 years इसका एक चेंजेस हुआ है वी हैड द फेंसिंग हैज बीन गोइंग ऑन द पुशबैक इज आल्सो गोइंग ऑन क्योंकि बॉर्डर्स में जितने भी लोग मिल रहे हैं उसको पुशबैक का मतलब हुआ हो रहा है सो all this used to happen in Assam is happening but since Bengal is not a part of this whole strategy में Bengal एक part नहीं था पहले तो उसके लिए थोड़ा सा issues definitely हुआ था क्योंकि if they are not coming via Assam they will definitely come via West Bengal so Yeah. एक थोड़ा सा उसका issues था but now that's why this election I think like the more I have been very personally being with all the strategies and everything, with especially with Honorable CM. So what I could understand is Assam election. Everyone knows that we are going to win. It was a clear difference of political strategy between Congress and BJP, and BJP was a winner even before the election begins. But in Hmm. Bengal, it was a fight. It was a war, and I think it was a by hook or by crook thing to win Bengal elections, and I think that happened. वो वहाँ पे बहुत अच्छे strategically, there's a very different, different way to do the election campaign this time in Bengal, and I think winning Bengal was very important. And I, coming from an Assam itself, I would say that winning Assam is important, but as much as also winning Bengal is important for people like us in Assam. So this time that happened. I think in the coming days forward, we'll see a lot of changes. Already we have been seeing the changes because the developments will come to Bengal, and if Bengal Bengal got developed, then definitely uska impact to Assam maybe padega because it's a border state. So so lot of things are going to happen, and I'm very much optimistic about it. एक चीज़ जो मैंने देखा है उस पूरे रीजन के अंदर जिस तरह से द पूरा जो ये नेटवर्क था, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल नेटवर्क। आई वाज़ डूइंग सम रिसर्च मंथली 900 करोड़ का पूरा नेटवर्क था इन्फिल्ट्रेशन का, मंथली Yeah, yeah. 900 करोड़ अ मंथ। नाउ दैट्स समथिंग व्हिच आई रेड, आई एम लाइक यार ये क्या है? ये तो 900 करोड़ अ मंथ इज़ जस्ट मैसिव। यू कैन इमेजिन कितने लोगों का यहाँ पर भी और उधर पे भी पैसा जेब में जा रहा था। Definitely. I mean, I'm sorry, your voice is not coming. प्लीज़ गो Hello? अहेड। Yeah, yeah.
I didn't hear you, but your voice was not coming. Could No, you I was please just repeat? saying 900 crores का जो ये धंधा था, Hmm. between India and Bangladesh का ये जो इन्फिल्ट्रेशन का 900 crores a month, insane Hmm. amount. Hmm. See, uh, if you go historically, if you check out our history and all those what happened in the past, you know, Assam was never Assam was like a target on mission and target for this group of people who have separated India and Pakistan and all that. Because in even during the partition time, Assam was supposed to go to the East Pakistan. Thankfully, Gopinath Bordoloi, Shyama Mukherjee was there, and we was here. But when this didn't happen, what was planned, what that didn't happen in during the partition time. That time even Jinnah, there is a history. I don't know, many of people doesn't might be not knowing. One of the Jinnah's advisors was supposed to give Assam as a gift to Jinnah was supposed to give Assam as a gift to that advisor, but that didn't happen during the partition. So what he did was he said in the last when he left India, he used to say कि चीन के पाकिस्तान बना लिया, लड़के असम लेके जाएंगे. तो दिस इज अ रिकॉर्डेड थिंग. तो ये inflations इसको we can see in terms of economic kind of thing, like कि बंगाल का इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है तो वो लोग काम के लिए असम में आ गया. This was never a story. It was the story that was being said, but this was not actual story, because then I mean years of Congress government and years of people who supported this kind of ideology was there. So इसका एक impact पिछले बहुत सालों से हो रहा था. अब ऐसे हालत है असम में, लाइक आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मंगलडे. आई नो असम मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम माय प्लेस. मेरे घर से शुरू हुआ था. तो इसलिए आपको ये बहुत लोगों को नहीं पता कि का जो प्रोटेस्ट होता था, का जो मूवमेंट हुआ था, एंटी का मूवमेंट जो हुआ था उस वक्त में, इमेजिन मंगलडे वाज अ प्लेस जहां पे इसका कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ था. जस्ट अगर ये एंटी का मूवमेंट तो ऐसे बोला जाता था कि बांग्लादेशी लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं. असम में ये स्टोरी था कि बांग्लादेशी लोगों को असम में और क्यों बांग्लादेशी को घुसा रहे हैं और क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो इट वाज जस्ट हिंदू बांग्लादेशी पीपल हु वाज ऑलरेडी स्टेइंग हियर. बट तो बांग्लादेश को हटाने का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट शुरू हुआ था मंगलडे में. लेकिन जो सेकेंड मूवमेंट जो का शुरू हुआ था उस पर मंगलडे का कोई इम्पैक्ट ही नहीं था. Why it was there, why did this happen? Because we see what could be the problem. We see what lakhs and crores of Bangladeshis sitting here in our places can do. So ये स्टोरी, ये जो पूरी नेक्सस है, ये नेक्सस सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देना या फिर वहां पे लोगों को थोड़ा सा ठीक है उनको थोड़ा काम धंधा मिले, ये बिल्कुल ही नहीं है. यहाँ पे दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. एंड थैंकफुली आफ्टर CM Himanta Biswa Sarma became, after BJP Sarkar came in 2016, and later Himanta Biswa Sarma became CM also, be it Sabanand Sonowal time or now, there's a difference of policies happening, and that is somehow saving us from the inevitable that is going to happen, because now the inflation is so much big that even if we say कि सारे बांग्लादेशियों को भगा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से भगा देंगे वहां पे तो लेना पड़ेगा. लेकिन उसका जो एक जो फ्लो पहले हुआ था, अभी वो लोग तो आ नहीं पाते बिकॉज बॉर्डर में पुश बैक हो रहे हैं. देयर आर स्ट्रेटेजीज दैट हैव बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. लाइक अभी कोई अगर बांग्लादेशी को बॉर्डर में पकड़े तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये कुछ नहीं करना पड़ता. विद इन 24 आवर्स उनको ऑटोमेटिकली पुश बैक कर सकते हैं. इवन द पुलिस हिमसेल्फ दे कैन डू इट. तो ये स्ट्रेटेजी हो रहा है अभी इस बार का. आई मीन दिस माइट लुक वेरी स्मॉल, बट अभी पहला कैबिनेट में, जो सेकेंड टर्म ऑफ SBS 2.0, उसमें पहले कैबिनेट में ये डिसीजन लिया था कि 18 प्लस के ऊपर किसी को भी आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा.
ये मतलब और सिर्फ ट्राइबल लोगों को कुछ वक्त का टाइम मिला है, बट उसके ऊपर से 18 के ऊपर कोई भी रहेगा उसको आधार कार्ड नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज आधार 18 के ऊपर नहीं देने वाला है, मतलब जो वहां से आने वाले उनको तो नहीं मिलने वाला है। तो ये सब जो स्ट्रेटेजिकली हो रहा है, दिस इज समहाउ सेविंग अस फ्रॉम द इनएविटेबल दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड सेकेंडली, जो इस बार के इलेक्शंस के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ। एवरीवन आर सेइंग कि मतलब असम में इतना ज्यादा सीट मिला है एंड ऑल दैट, बट देयर इज ओनली वन हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असम में बीजेपी नहीं जीता। हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी वन, वो अखिल गोगोई वाला जो शिवसागर वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो नहीं जीता। वो भी मतलब वी कुड हैव वन, बट देयर आर सम रीजंस नहीं जीते। बाकी सारे 103 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और बीजेपी प्लस को मिला है, सभी हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। द रेस्ट वाज एक्चुअली नॉन हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये जो हमारी रिसेंटली जो डिलिमिटेशन हुआ, इसकी वजह से मतलब थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था। बट इमेजिन अभी पॉलिसीज हैज सिर्फ इट्स बिकमिंग द एक्सट्रीम लेवल। पहले ऐसा नहीं होता था कि एक जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी हो गया तो मतलब वो वहां पे भी बीजेपी हो या हिंदू मेजोरिटी हो गया तो कांग्रेस नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं होता था पहले। मतलब लाइक देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहाँ पे हिंदू का मेजोरिटी है फिर भी कांग्रेस जीत रहे थे, बट अभी नहीं हो रहे। So this is the extreme level of politics, that extreme level of shift of the mindset has become. अभी we know, मतलब लकीली हमने ये डिलिमिटेशन से ये 103 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम बचा दिए। वहां पे भी 60-40 काइंड ऑफ डेमोग्राफी है। तो आने वाले समय में इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स ये तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो हमारी में लोग तो बढ़ नहीं जाते। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा होने वाला है। सो दिस इज इनएविटेबल, ये होने वाला ही है। बट कहीं ना कहीं with the shift of the government, with the shift of the policies, somehow हम इसको थोड़ा slow down करें, and probably that is just helping us. ये it's not something I'm talking in terms of politics or something, but ये मतलब overall भी इसका एक impact होने वाला है। See, overall impact I can understand, and जो demography का जो लोग बात, I mean, हेमंता साहब has been warning about this very clearly कि भाई we can stop it, we can delay it, but इसको कहीं ना कहीं we will have to, you know, handle it very very differently. इसके अंदर एक चीज तो है कि you know, one is that दो तीन पॉइंट्स है इसके अंदर जो मतलब आई बीन वांटिंग टू कम्युनिकेट दिस टू समवन इन असम की, दो तीन चीजें जो वेस्ट के अंदर एक वो कॉन्सेप्ट है ना इंटीग्रेशन का, कि भाई अगर आप इंटीग्रेट करो तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। You know, that's one thing that is there, that this is अच्छा ठीक है, you're here now, you better start behaving like the rest of us, otherwise you will have challenges. तो वो एक इंटीग्रेशन का पॉइंट है, which I think only a person like हेमंता साहब can actually, you know, talk. वो करते हैं इसको, and he's got that ability to do it very very clearly. So what do you think about that? Yeah, definitely. Because now it's the third time, and see, the development ability is going to happen. उसका कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि रुकने वाला नहीं है. And the roads are being developed, and employment are coming, infrastructures are coming. That's already going to happen. But now the focus should be on safeguarding our culture, safeguarding our identity, and safeguarding our mostly the safeguarding our identity. I will not actually directly say कि Hindu identity, but some other Hindu Assamese identity. So ये दोनों को हमको safeguard करना ही, I think what Himanta Biswa Sarma are going to do in the coming next 5 years will be on that point, sir, because that's very needed. अभी आप like the way you are saying that कि integration is important. Yeah, definitely उसको होने वाला है and I think somehow उसका एक changes भी हो रहे हैं, like CM has warned all the MLS to not give someone who don't follow the
this kind of no, I'm not saying like कि Hindu हो ideology हो, but at least we are not even concerned about the demographic sense. उनको हमें नहीं देना है, मतलब उनको काम नहीं देना है, उनको मतलब थोड़ा सा तो उनको एक impact होने वाला है, तो वो better behave is something that CM is going to do. And I think this is the third time he definitely can do. He had the mandate. अभी किसी का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है. He have the mandate. I think in the coming days, as much as I know him, he is not going to sense all this. This is going to happen. He promised to bring UCC just after he re-elected. He did that. UCC is already there. There are many other small steps that he is taking here for safeguarding our identity. And I think in the coming in this term itself, we'll see a lot of changes, and definitely they will अभी उनको भी सुधरने का टाइम आ जाएगा. मेन वही है ना, सुधरना चाहिए. Now, एक जो चैलेंज था, जो अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले हेमंता साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, वेर ही वेरी क्लियरली मेंशन्ड, यार चैलेंज अभी असम में नहीं है. असम को हम झेल जाएंगे, हम खेल जाएंगे उसको. Assamese people have realized what the issues are. Assamese people have stood up and they know what needs to be done. So don't worry about Assam. We'll handle Assam. But the challenge is Bengal, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर करते हैं उसका बंगाल उल्टा कर देता है. So that one challenge जो अभी वो आपका खत्म हो गया है, तो आप इधर से पुश बैक करते थे, उधर से एंट्री आके वापस they would come into Assam. Yeah, right. So now how do you see the situation? जो पुश बैक हो रहा है, असम में भी ब्लॉक्ड है, और वेस्ट बंगाल में भी ब्लॉक्ड है, त्रिपुरा में ब्लॉक्ड है. ऑल दैट एरिया इज नाउ ब्लॉक्ड. वहां से आना बड़ा मुश्किल है अभी वापस. सो इज देयर अ चेंज इन दीज, ये जो इनके जो नेटवर्क्स हैं, जो बांग्लादेशी के जो नेटवर्क्स हैं, और जो हमारे यहाँ पर भी बाय द वे लॉट ऑफ दीस स्मगलर्स आर देयर, एंड जो लोग बेनिफिट करते हैं, हाउ डू यू सी दिस चेंजिंग इटसेल्फ? ये कुछ चेंज कर पाएंगे कि ये इनका हो गया खत्म, दे आर नाउ गोइंग टू डाई? No. See, one thing, what I understand is, and one thing what I believe is, it's a long going battle. They are not going to die down in any day. Like not today, not tomorrow, and probably not after 100 years or so. So this is a long going battle. We have to every day fight on this. अब डेफिनेटली थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट जो पहले से जो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि बंगाल से मतलब वो जैसे आप बोल रहे हो कि असम से तो पुश बैक हो रहा था, वो बंगाल से फिर असम घुस जाते थे, तो वो थोड़ा कम डेफिनेटली होगा. पर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, और मतलब चैलेंजेस तो है ही. और ऊपर से मुझे नहीं लगता जो ये मिशन जो मतलब सालों से कर रहे हैं, वो सडनली वो लोग बंद नहीं करने वाला. ये मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट going to stop very soon. But इसकी लड़ाई है, और ये लड़ाई हमको लड़के ही रहना पड़ेगा. I think I don't think even down the line 50 years इस लड़ाई को खत्म होने वाला है. हर एक जनरेशन like this is a bold statement, but I am saying is we will need Himanta Biswa Sarma, Shubhendu Adhikari, Narendra Modi type of people for generations after generations. This is not going to stop. ये मतलब I'm staying here from here. I think that's what I understand, because क्योंकि जो चीज 47 में हुआ था वो भी तो अभी भी हो रहा है. उसका एक डिफरेंस, उस वक्त में उनका फ्लो ज्यादा हुआ था, अभी उनका फ्लो कम हो गया. अब वो लोग कोई दूसरा तरीका निकालेगा, बिकॉज उनकी मिशन है ना ये. तो ये मतलब जल्दी खत्म नहीं होने वाला. एज आई सेड, विल नीड हिमंता बिस्वा शर्मा, विल नीड शुभेंदु अधिकारी, विल नीड नरेंद्र मोदी फॉर जनरेशंस. ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने करके खत्म कर दिया. नेक्स्ट टर्म में अगर बीजेपी का ही कोई नॉट हिमंता बिस्वा शर्मा मतलब नॉट लाइक हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो इसको भी वापस से प्रॉब्लम होगा. कांग्रेस आएगी तो वो तो खत्म ही, वो पूरा सालों का मेहनत एक साल में खत्म कर दे. सो आई थिंक इन दिस बॉर्डर स्टेट्स someone like Himanta Biswa Sarma is needed for generations. In West Bengal, someone like Shubhendu Adhikari is needed for generations, and of course in center, someone like Narendra Modi is needed for generations. And there's no question about it, क्योंकि this जो इतना वो क्या बोलते हैं ना, ignorance जो किया है इस जगह का, drugs and this and that and everything like that, it's just crazy. Now I want to talk about your core area. You're very strong in social media. आपका काफी जबरदस्त हाथ है.
एक चीज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी एंड ये पूरा जो नैरेटिव चलते हैं वो एकदम से ऊपर जाता है। आप लोग देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ आल्सो बीइंग डन बाय बीजेपी गवर्नमेंट ये लोग सब लोग कर रहे हैं बट दैट डज़न्ट गेट दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन। व्हाई इज़ दैट? आपको क्यों लगता है? See, See, social social media, yeah, मतलब in all the platform, be it Twitter, Insta और Facebook, तीन ही प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चलता है। हर एक प्लेटफॉर्म का वो अपना अलग अलग यू नो अलग अलग यूएसपी है। लाइक इफ यू गो ऑन द फेसबुक, ये बहुत ज्यादा लोकलाइज इश्यूज पे बातें हो गई, बहुत सारा मतलब दे विल नॉट गो इनटू, आप वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस और ये मतलब ये सब चीजें आप फेसबुक में इतना ज्यादा नहीं चलते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लोकलाइज सीन है। जैसे कल जो जापान का प्राइम मिनिस्टर असम में आने वाले थे उसको कैंसिल हुआ। द वे nationally it's been presented and the reason why it happened was a very different thing. I gave a post on Twitter also, but वो Facebook में वो Twitter में ये discussions नहीं हुआ, Facebook में हुआ था because वो बहुत ज्यादा localized issues था। Insta is a very to be honest, to say Insta is a Gen Z and Alpha kind of platform। वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब थिंग्स हैज टू से ऑन देयर टर्म्स ओनली। आप पॉलिटिक्स की भी बात करोगे, आपको वहाँ पे वो जेनजी लोगों की हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। इन ट्विटर इट्स मोर अबाउट द आइडियोलॉजी थिंग। आप ट्विटर में आपको आइडियोलॉजी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। द रीजन बीजेपी असम पुलिस हैंडल got such a spike during the elections, but like when I was there, was because we talk on the ideological issues. अब ये प्लेटफॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है। हु आर इन दैट मतलब जो भी इंचार्ज में है, चाहे वो बीजेपी का हो कोई भी हो, उनको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक इफ वंस यू नो दैट विल नो। बट क्या होता है कि अभी आई मीन सॉरी टू से दैट, बट ये प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत ज्यादा मोनेटाइज काइंड ऑफ थिंग हो गया अभी। मतलब आई एम वेरी मतलब लाइक हेट टू टेल दिस, बट अभी हमारे लोग भी तो पब्लिसिटी नहीं करते ना। लाइक if I am posting something which is about BJP, which is about a pro thing about BJP, which is a publicity about BJP, how many of our people will actually amplify that without giving that link to that person? Or that I will not say this on record, but that's the truth also. So I think ये प्लेटफॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो एक शिफ्ट भी हो गया सोशल मीडिया में। द लेफ्टिस्ट हैज दैट। लेफ्टिस्ट का एक चीज है कि उनको या दे टॉक अबाउट मनी, दे हैव द मनी एंड एवरीथिंग, बट उन लोग को कभी कभार विदाउट द मनी भी उनको हो जाते। टेल गिव अ स्मॉल नेगेटिव थिंग अबाउट अ बीजेपी गाय, whoever is paid influencers of the opposition or not the paid influencers, everyone will jump on it. This is something, an unity that leftist has there। उसमें से उनको सिर्फ वो चीजों को पुश करने के लिए उनको they need some paid इन्फ्लुएंसर्स। एक बार पुश हो गया उसको फिर चलते बैठेंगे, उनको कोई नहीं करेंगे। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर किसी के अगेंस्ट में कुछ कैंपेन हो रहा है भी, आई एम रियली हेट टू से दिस, आई मीन मोस्ट ऑफ आवर people are gaining followers, become an influencers and all that, just because there is Modi there. They did something for the Modi. I follow a lot of people when I was not even when I used to have 1000 or 2000 followers back then। वो लोग को हम इसलिए सपोर्ट करते थे, ये भी उनको लगता था कि वो लोग हमारा लोग है, हमारे फॉलोअर्स है, बिकॉज they talk about BJP, they talk about Modi, they talk about good things। So हमको लगा था वैसा, but now उसका सिचुएशन अलग हो गया। अभी बहुत सारे लोग घर पे बैठे कुछ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा आई थिंक एज आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब जो बड़े लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, बिकॉज someone sitting in a very safer zone of country
it's easy to just criticize Modi. It's easy to criticize BJP और बोलेंगे कि हम में क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस उसके भले के लिए कर रहे हैं. बट व्हेन यू कम टू अ बॉर्डर स्टेट, अब कोई भी बॉर्डर स्टेट में आप असम में आके देखो, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे मंदिर, काली मंदिर का मंदिर तोड़ के वो काली माँ का गला काट दिया गया था. 5 किलोमीटर, जस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस. तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और वो बीजेपी का सरकार रहने के बाद भी हुआ है. तो सी द डेंजर दैट इज हैपनिंग हियर. तो ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट. समटाइम्स फॉर द ग्रेटर गुड थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लो सभी लोग एक साथ मिलके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको तो बस एक ट्वीट ही करना है, एक ट्वीट को रीट्वीट, आपको कोई भी अच्छा बीजेपी का कुछ अच्छा चीजें देख रहे हैं, आप रीट्वीट कर लो. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट. एंड ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ दिस, आई एम मतलब लाइक हेड टू से इट, बट हमारी जो भी ये प्लेटफॉर्म्स का जो भी इंचार्जेस वगैरह है इन पार्टी ऑल्सो, they also had to look, मतलब see the border perspective. उनको समझना पड़ेगा कि कैसा कैसा होता है. जैसे so this time Assam election was one of the, I think, one of the most effective social media campaign that BJP has done in last, probably after 2021 2014, probably 2014 में इतना बड़ा एक हुआ था. इस पर उसके बाद मतलब सोशल मीडिया में असम का इस बार इलेक्शन, मतलब it was a different kind altogether. So how it happened, because we did research, we work on how things works, we know, once we did research, of course trial and error हुआ था, कभी कभी उस trial and error में कुछ गलतियां भी हो जाता है, but we did that way. We the CM was very much concerned. CM साथ में था, उन्होंने हमको गाइडेंस दे रहे थे. पीयूष दा was there. पीयूष हजारिका, one of the most effective ministers from SBS government. उन्होंने भी हमें गाइडेंस दिए थे. The team was there. The whole CM team was there. So we did research. We work on things. We know, we understood कि क्या कौन सी प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें को लेके आना है, कैसे कैसे करना है. तो इस ऐसे मतलब, एंड somehow one of the thing that I don't know, I started it as a trial basis, and later on उसको मुझे समझ में आया कि जो ऑफिशियल हैंडल को था उसको भी हमने थोड़ा सा कैजुअल टाइप ऑफ बना दिया, सो दैट इट अट्रैक्ट पीपल्स. लोगों को समझ में आ जाते हैं दैट we made that term पाइजन for Gorakhpur. It was very effective. मैं ऐसे एक दिन रात को बैठ के पाइजन बोल के एक पोस्ट कर दिया था, लोगों को अच्छा लगा, उसी को कंटिन्यू किया, फिर मीम्स बनाए. तो ये सारे चीज एक मतलब रिसर्च एंड डेवलप, रिसर्च करके उसको ये करना, अलग अलग टीम के साथ मिलकर ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी इंस्टाजेस है उनको भी सोचना से जस्ट रैंडमली पोस्ट करना will never work. We have to work what works for the platform, had to find out like that. So another thing I was getting assurance when I was working with the party handle was that we stop asking for validations. We literally stop asking for validations. I mean, ये ऐसा पोस्ट करेंगे तो लोग क्या, मतलब ऑपोजिशन वाले क्या सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो इसको मतलब यूजिंग ऑनलाइन टर्म लाइक कांग्लो इन एन ऑफिशियल हैंडल. It was something with I wanted to, but I was like कि ये करेंगे तो क्या होगा, but then I was giving assurance, छोड़ो इसको, तुम करो, because हम किसी से validations नहीं चाहिए. तो ये थोड़ा सा मतलब non apological approach भी I think the in-charges need to taken care of. एक्चुअली स्पीकिंग ओनली, ये तो बड़ा बैलेंस अप्रोच सिर्फ बीजेपी रखती है, बाकी सब तो खुले में अटैक करते हैं. दे से व्हाटएवर दे वांट. तो यहाँ पर ही वो थोड़ा सा एक वो नहीं, डोंट से दिस एंड ऑल दैट. ठीक है. I'm giving a small example. Yeah, so I'm giving a small example, like Congress made a video, made a graphics during Assamese Mark Bihu showing firing the BJP state office.
So there's a graphics made by Congress saying like कि इस माघ बिहू में इन लोगों को निपटा दो, जबकि हमारे कल्चर में वो नहीं है। एक बीजेपी ऑफिस को आग लगा के उन्होंने शुरू कर दिया था। They just silent when there was objection, they just silently deleted the post. There was another post by Congress during the election time where they showed mob lynching of CM Himanta Biswa Sharma. The graphics was like that. He was being mob lynched by CM Himanta Biswa Sharma. They again, when we object that, when we started, when there was an online outrage on that, a very small online outrage for a few hours, they deleted it, and there was nothing sort of anything that मतलब like उसके बाद the regular work फिर से वो लोग शुरू कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, that so and compared to what happened to me, so I think वो एक छोटा सा है, of course being in a ruling party हमको थोड़ा सा approach देना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच, बट उसको भी हम आई थिंक अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस में जो करना चाहिए, आई थिंक उसको करना चाहिए। एक छोटा सा सीट ऑफ प्लेटफॉर्म जान Yeah, it should not be harmful and all that stuff. वो सब ठीक है कि भाई कोई violence नहीं होना चाहिए। बाकी I think the game should be open यार। पैंट उतारो Yeah, लोगों की exactly. I think post a meme, make use the online, जो ऑनलाइन पे जो लोग बोलते हैं, जो रेगुलर टर्म है, वी कांट गो ऑन लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक चीज है कि जैसे मैंने इंस्टा में भी किया था, व्हाट आई डिड इन द इंस्टा, आई वाज द वीडियो मे बी मीम्स और एनीथिंग, बट द कंटेंट वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी द जेनजी लैंग्वेज. आई नेवर gave a when I was there, I never used to like write some long captions, very formal captions नहीं लिखते थे, मैं Gen-Z words use करते थे. I will say when वो लोग X बोलते हैं, 6 7 6 7 ये सब बोलते, तो ये सारे Gen-Z words को मैं learn किया और मैं उसी words को मैंने Insta में शुरू कर दिया था. So that's why the handle also get popular in Insta also. So कहीं ना कहीं हमें वो चीज करना पड़ेगा, because no one is going to read a formal, ठीक है वो सीएम बोल रहे हैं तो वो भी ठीक है, बट सीएम भी कभी कभार तो एक इनफॉर्मल वर्ड बोल ही देते, तो वो लेटेस्ट स्टेज में तो वो जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था उस दिन भी बोले दे दिए थे, बैड डेज फॉर यू नो हु, नो वन आई एम गेसिंग. सो थोड़ा सा इनफॉर्मल होना पड़ेगा, बिकॉज ये फॉर्मल लैंग्वेज में तो कहा ही होता है. नहीं, वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. Ron, thank you so much यार. I think you've given us a very different perspective, and वहाँ पर I would really like to keep in touch with you, because to me Assam, Bengal, these are very important states, and हमारा अभी focus आया है back to the northeast. It is very important that वो focus वहाँ पर रहे. We should not just go back and forget. Yeah, like Kashmir, like Punjab, Northeast is a very strategical स्टेट. यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ की जो अनसर्टेनिटीज को खत्म हो जाते हैं तो इंडिया कैन ग्रो अ बिग. अभी मैं एक छोटा सा मतलब बोलता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज ने जो एडवाइजरी दिया था टू नॉट टू ट्रेवल टू असम, उसको अभी हटा दिया गया है. तो ये सारे चीज बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं. लाइक अर्लियर देयर वाज नो फाइट फ्रॉम असम टू दुबई, क्योंकि दुबई और टू अबू धाबी क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक एडवाइजरी थे कि असम नॉर्थ ईस्ट और असम इज अ वेरी अनसर्टेन स्टेट, तो आप वहां पे नहीं ट्रेवल कर सकते. अभी डेवलप इतना हुआ है, इसको लोगों को बहुत छोटा चीज लगेगा, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग. एक इतना डेवलप हो रहा है कि इतने सालों से जो एडवाइजरी था, आई थिंक कल यस्टरडे सीएम वाज टेलिंग इट्स मोर देन 30 to 40 years बड़ा पुराना एडवाइजरी था, उसको अभी हटा गया. ओनली 2 स्टेट्स में, अभी 2 कंट्रीज में अभी एडवाइजरी है, जो यूएस एंड कनाडा में है, टू नॉट टू ट्रेवल टू असम. बाकी सारे स्टेट्स में कंट्रीज का एडवाइजरी से हटा गया है. तो ये इट्स अ बिग स्टेप. ये इसको समझना, नॉट इन
from the lens of politics, इसको from the lens of national integrity, from the lens of national security, from the lens of demography, ये सारे चीजों पे देखेंगे तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स भी बहुत इम्पैक्टफुल है. Absolutely. Thank you so much, and Thank very you. nice of you to take our time. Yeah, Audience, follow him on Twitter, and he will. You'll be quite astonished कि क्या different चीजें लिखते हैं, which is very interesting to follow. And yeah. of course, like, subscribe, and share this with your friends and families. That's all I can ask you. Namaskar. Jai Hind. That's